Assalamu alaikum dear 5th class students. Today we will solve some questions of your textbook. It is exercise 4.1 page 48. The question is multiply the numerator and denominator by 2 to get the equivalent fraction. हमारे पास कुछ fractions होंगे. For example first part में लिखा है 1 divided by 4. इसमें 1 is the numerator, upper part is the numerator and lower part is the denominator. We have to multiply both numerator and denominator by 2. इस 1 को भी multiply 2 से करना है, 4 को भी इसी 2 से multiply करना है to get the equivalent fraction. Dear students, 1 divided by 4 हम 2 से numerator को multiply करेंगे और denominator को भी इसी 2 से multiply करेंगे. तो we get another fraction that is equivalent to 1 divided by 4. 2 1s are 2 divided by 4 2s are 8. तो हमारे पास जब मैंने 1 डिवाइड बाई 4 को 2 बाई 2 से मल्टीपल किया वी गेट 2 डिवाइड बाई 8. 2 डिवाइड बाई 8 एंड 1 डिवाइड बाई 4 आर टू इक्वलेंट फ्रैक्शंस. ना कैसे? हियर इट इज 1 डिवाइडेड बाई 4 को हमने कन्वर्ट किया 2 डिवाइडेड बाई 8 में बाय मल्टीप्लाइंग 2 to the numerator by 2 and denominator by 2. We get 2 1s are 2, 2 4s are 8. यहाँ भी 1 divided by 4, 1 divided by 4. Therefore these are two equivalent fractions. इनके appearance different है लेकिन इनका value जो है that is same. For example अगर हमारे पास 1 divided by 4 fraction, अगर हम इसको भी 3 से multiple करेंगे, numerator को भी 3 से और denominator, we get another equivalent fraction to 1 divided by 4. 3 1s are 3, 4 3s are 12. So 1 divided by 4 and 3 divided by 12 are two equivalent fractions because we multiplied both numerator and denominator by a constant number. 3 1s are 3, 3 4s are 12. यहाँ देखो 3 1s are 3, 3 4s are 12. 1 divided by 4, 1 divided by 4. Therefore 1 divided by 4 and 3 divided by 12 are two equivalent fractions. Now the second part is, dear students, another part और एक क्लास आखिरी part में दिखाऊँ इसमें वो है 2 divided by 5. एक पार्ट इसमें 2 divided by 5 multiple both numerator and denominator by 2. तो we get 2 divided by 2, we get 2 2s are 4 divided by 5 2s are 10. Therefore 2 divided by 5 and 4 divided by 10 are two equivalent fractions because we multiplied both numerator and denominator by a constant number. by एक same number से एक common number से हमने multiple किया, we get 4 divided by 10. So therefore 2 divided by 5 and 4 divided by 10 are two equivalent fractions. 2 2s are 4, 2 5s are 10. 2 by 5, 2 divided by 5. हम कोई भी equivalent fraction, for example अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन होगी 9 divided by 15. 9 divided by 15. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे वी गेट द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 15. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 से मल्टीपल करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वी गेट 9 6 is 54. 15 into 6 is equal to 90. Therefore 59 divided by 15 and 54 divided by 90 are called two equivalent fractions. किससे मैंने मल्टीपल किया वी गेट 6 9s are 54, 6 15s are 9 divided by 50, 9 divided by 50. Therefore these are two equivalent fractions. Now the second question is divide by common factor. Divide by common factor to get an equivalent fraction. To get an equivalent fraction. Equivalent fraction. जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने मल्टीपल किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन टर्म से तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ है इट इज पार्ट फर्स्ट 5 डिवाइड बाय 20. 5 divided by 20. We have to get divide by common factor. 5 divided by 12, 20 is a fraction. Here 5 is the numerator and 20 is the denominator. सबसे पहले हम देखेंगे इनका common factor क्या है. Highest common factor 5 or 20 to get it, the given fraction in its lowest form, to reduce it into the lowest form. 5 divided by 20. अगर हम 5 को factorize करेंगे we get 5 1s are 5. और अगर हम 20 को फैक्टराइज वी गेट 20 5 4s are 20 और 4 1s are 4.
देयरफॉर ये हम 20 को ऐसे भी फैक्टराइज करेंगे, 20 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5. Therefore 5 is equal to 5 into 1, और जो 20 के फैक्टर्स है that is equal to 2 into 2 into 5. The common largest common factor, highest common factor is 5. 5 और 20 का highest common factor that is 5. Common factor जो 5 और 20 का that is 5. Therefore we have to divide numerator and denominator by the common factor which is 5. तो हम डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 से, इनका जो कॉमन फैक्टर है 5 और 20 का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5. देयरफॉर वी गेट 5 डिवाइड बाय 5 वी गेट 1. 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 are 20, वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 4. तो इनका जो कॉमन फैक्टर था 5 और 20 का जो कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 था इनका, 5 और 20 का, वो मैंने एग्जांपल में दिखाया 5. तो मैंने इसी कांस्टेंट नंबर से इन दोनों न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और वी कैन से दैट हमने 5 डिवाइड बाय 20 को रिड्यूस किया टू इट सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर हम यहाँ चेक भी करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 20, हम फ्रैक्शन 5 1s are 5, 5 4s are 20, वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 4. हियर इसका आंसर भी था 1 डिवाइडेड बाय 4. तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, नेक्स्ट पार्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 30. 15 डिवाइडेड बाय 30. सबसे पहले हम ढूंढेंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. सो हम फैक्टराइज करेंगे 15 को, वी गेट 3 5s are 15, 5 1s are 5. और 30 के फैक्टराइज, जब हम 30 को फैक्टराइज करेंगे वी गेट 2 15s are 30, 3 5s, so 3 5s are 15, 5 1s are 5. देयरफॉर जो 15 के फैक्टर्स है दैट इज 3 into 5, और जो 30 के फैक्टर्स है दैट इज 2 into 3 into 5. अब यहाँ देखो 15 में भी 3 है और इस 30 में भी 3 है, देयरफॉर द कॉमन फैक्टर 3 भी है और कॉमन फैक्टर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो वी गेट 3 into 5. लेकिन इस 30 में 2 है लेकिन 15 में 2 नहीं, देयरफॉर 2 इज नॉट द कॉमन फैक्टर. 3 and 5 आर बोथ कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर वी गेट 3 5s are 15. देयरफॉर इन 15 और 30 का जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 15. इसी 15 से हमें इनको डिवाइड भी करना है, वी गेट 15 डिवाइडेड बाई 15. Therefore 15 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर दैट इज 15, इनको इसी से हमें इस फ्रैक्शन को डिवाइड भी करना है. वी गेट 15 डिवाइडेड बाय 15, वी गेट 1. 15 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, 30 डिवाइडेड बाय 15, 15 2s are 30, तो वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर हमारे पास जो फ्रैक्शन थी दैट वाज 15 डिवाइडेड बाय 30, इसको हमने रिड्यूस किया टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 1 डिवाइड बाय 2. 1 डिवाइड बाय 2 एंड 15 डिवाइड बाय 2 आर आल्सो कॉल्ड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट 42 divided by 49. 42 divided by 49. सबसे पहले हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे 42 और 49 का. 42 और 49. 42 को हम फैक्टराइज करेंगे, वी गेट 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. जब हम 49 को फैक्टराइज करेंगे वी गेट, तो सिंपल इसको 7 से होगा, 7 7s are 49, 7 1s are 7. तो 42 के फैक्टर्स होंगे, 42 इज इक्वल टू 2 into 3 into 7. जब हम 49 के फैक्टर्स देखेंगे वी गेट 7 into 7 into 1. तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स है, अब यहाँ देखो 42 में इसमें 2 लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3, 42 में 3 नहीं है, 7 और 7 एक ही 7 इनका कॉमन है. देयरफॉर इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 7. देयरफॉर 42 और 49 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दैट इज 7. इसी 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और वी कैन रिड्यूस इट इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म. 7 6s are 42, यानी 42 डिवाइडेड बाय 7, और 7 6s are 42, वी गेट 6. 7 7s are 49. तो हमारे पास 42
डिवाइडेड बाई 49 की जो इक्वलेंट फ्रैक्शन और इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 7। देयरफॉर 42 डिवाइडेड बाई 49 को हमने 7 से डिवाइड बाई 7 6 आर 42 7 7 आर 42 दैट इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारे पास भी 6 डिवाइड बाई 7 आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें।